Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 11th August 2021 and I am teaching you chapter number 5. Name of the chapter: Force, Work and Energy. So, student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So, in a previous video I explained you what is the meaning of the force. So, what is a force, student? Now, force is pull or push. When we pull or push any object, so this is possible when we apply a force. जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग पुल करते हैं या पुश करते हैं. सो एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स. सो व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स इज ए पुल और पुश. आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन यू what are the things which can be done with the help of a force. Force can move an object. Force can increase the speed of a object. It can stop a moving object. Okay, it can also change the direction of the moving object, and by applying force we can also change the shape of the object. So these are the things I have already explained you in the previous video. Today I am just doing a recapitulation. So if you want to see the full explanation on this topic force, you can watch the previous video. Now from in today video we will discuss types of a forces. So let's start with the muscular force. So student, we do lot of activities in our day-to-day life, and this is possible due to our muscular force. Okay, the movement of our bones is possible due to the muscles, because muscles are attached to the bones, and that due to that at the place of a joint the bones move. So in our day to day activity lot of things we do, and what we are doing, we are applying our muscular force in that. For example, simple example, you are student. So for you a simple example is that, for example, you are writing something in your copy. So here also you are applying a muscular force to do this activity. Okay, so with the help of some few examples I want to tell you. For example, if you carry bucket, then you apply a muscular force. Or to carry anything, or even you can say when you come to school you carry your bag on your back. So what force you are applying to carry that bag? That is also your muscular force. So in this manner student, we are doing lot of activities by applying our muscular force. Some examples are given in the book. Squeezing of a lemon. लेमन में से आप लोग रस निकालते हो ना, लेमन कैसा होता है? खट्टा होता है. तो उसके लिए भी आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो. इज इट क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल. आप लोग तो खैर छोटे बच्चे हो, बहुत बड़े बच्चे, बड़े लोगों को आप लोग ने देखा होगा जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क पे वर्क करते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, तो बहुत हैवी वेट वो लोग उठाते हैं. तो उसके लिए वो लोग क्या यूज़ करते हैं? मस्कुलर फोर्स. मैंने इससे प्रीवियस चैप्टर में आप लोग को बताया था कि बच्चों को और जो हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं इनको, इनकी डाइट, रिच डाइट इनकी किस में होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जो लोग लेते हैं, क्योंकि इनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. इवन नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स आल्सो
अप्लाई देयर मस्कुलर फोर्स। ओके, एनिमल्स भी जो करते हैं, ठीक है, तो एनिमल्स भी क्या अप्लाई करते हैं, मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जांपल एलिफेंट अपनी मस्कुलर फोर्स की वजह से इतने बड़े बड़े लॉग्स ऑफ वुड को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे क्या कराता रहता है, मूव कराता रहता है। ठीक है, ओल्ड टाइम में जब मीन्स ऑफ सबसे पुराने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो था बुलक कार्ट। तो इसमें क्या होता था, द एनिमल अप्लाई बुल्स अप्लाई देयर मस्कुलर फोर्स टू पुल अ कार्ट। कार्ट कैसे मूव करती थी उस समय बेटा, मशीन्स नहीं होती थी। आज तो जितनी मैन मेड मशीन्स हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, दे आर रनिंग विद द हेल्प ऑफ ए पेट्रोल, सीएनजी और डीजल से वो बड़े फास्ट रन कर रहे हैं। लेकिन ओल्ड टाइम में क्या होता है, बुलक कार्ट हुआ करती थी, ठीक है, जिसको बुल अपनी मस्कुलर फोर्स से खींचता था। किसको खींचता था, वो पुल पुल करता था। किसको करता था, कार्ट को क्या करता था, पुल करता था। तो दैट इज a muscular force, the force which is applied by us, that is the muscular force, and we do lot of activities in our day to day life in which we apply the muscular force in different manner। ठीक है, मान लो तुम्हारे घर में कोई सामान रखा हुआ है, आपकी मम्मी बोल दी 5 kg ऑफ ए वीट है, आप इस रूम से इस रूम में शिफ्ट कर लो। तो उस समय जब आप उस बैग को उठाओगे जिसमें 5 kg वीट होगा, तो उस समय आप जो अप्लाई कर रहे हो वो क्या आपकी बेटा, वो आपकी मस्कुलर फोर्स ही है, जिसको आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। किसको कैरी करने के लिए, बैग को कैरी करने के लिए जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो बेटा, वो आपकी क्या है, मस्कुलरी फोर्स है। ठीक है, तो आई होप सबको मस्कुलर फोर्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ सेकेंड इज द ग्रेविटेशनल। सेकेंड इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बेटा। ओके, वेरी सिंपल एग्जांपल। मैं क्लास में तो नहीं हूँ इस समय, मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन वीडियोस बना रहा हूँ, ऑफलाइन वीडियोस। तो इस समय स्कूल्स तो बंद हैं, नहीं तो स्कूल में एक छोटी सी एक्टिविटी हम कराते तो आप लोग को और भी बढ़िया समझ में आता है। इसके लिए सबसे बेटर मेथड है, टेल ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। ठीक है, आप सब स्टैंड हो जाओगे और फिर मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दूंगा, कम ऑन लेट जंप। जंप मतलब उछलना होता है ना, तो जंप करो। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जब आप जंप ले रहे हो, तो जब आप जंप ले रहे हो मतलब हाइट में जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है जंप लेने से आप एयर में उड़ जा रहे हो, यू आर फ्लाइंग इन द स्काई। बाद में अपने फिट पे तुम लैंड पे ही आ रहे हो। इज इट क्लियर। सो इसका बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि बच्चों को बोलो कि ऑल ऑफ यू स्टैंड अप एंड स्टार्ट जंपिंग, और उनसे पूछो कि व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, तो वो बोलेंगे हम जंप तो कर रहे हैं, लेकिन जंप करने से वी आर नॉट फ्लाइंग इन द एयर, अगेन आवर फिट कम डाउन ऑन द लैंड। हम हवा में उड़े नहीं जा रहे हैं जंप करने से। ठीक है, हम हमारे फिट क्या है, लैंड पे दोबारा से आ जा रहे हैं। तो वाई दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, जो हमारी अर्थ है उसमें क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है बेटा, वो सारी चीजों को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, वो सारी चीजों को अपनी ओर खींचती है। दैट इज द रीजन लॉट ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स है, वाटर है, सॉइल है, इतनी ज्यादा चीजें, सारी लिविंग को मान लो या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सब के सब लैंड पे हैं। रीजन क्या है कि हमारी अर्थ में एक फोर्स है जिसे हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जो अपनी ओर सबको खींच लेती है। दैट इज द रीजन आप जंप लेते, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, एक फोर्स है जो हमें दिखती नहीं है, वी आर अनेबल टू सी दिस फोर्स बट वी कैन रियलाइज, वी कैन फील। जैसे कि कोई कोई फोर्स है जो हमें अपनी ओर खींच लेती है। ठीक है, तो इस फोर्स को बेटा हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम इस फोर्स को फील कर सकते हैं। इज इट क्लियर। सो दैट इज द रीजन जितनी भी थिंग्स हमारे सराउंडिंग्स में है, अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होती तो आपके वाटर ले लो, लैंड ले लो, रिवर का वाटर ले लो, लैंड्स पे जितनी भी चीजें हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं, सारी चीजें हवा में उड़ रही होती, सारी चीजें। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके नहीं होने का रीजन ये है
कि हमारी अर्थ में एक फोर्स है जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जो सारी चीज़ों को अपनी ओर खींच लेती है। ठीक है, यही है आपकी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यही है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल द साइंटिस्ट न्यूटन ने सबसे पहले ये पता लगाया था कि एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से हम उड़ते नहीं हैं। ठीक है, और ये किसमें, अर्थ में प्रेजेंट है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सारी चीज़ों को पकड़ के रखी है। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हम लोग उड़ते रहते हैं हवा में। ठीक है, तो ये क्योंकि जब भी आप लोग ऑब्जर्व करते होगे, अगर आप बॉल को थ्रो करते होगे, बॉल बहुत हाइट पे जाती है, अगर आप बॉल को लेके हाइट पे थ्रो करते हो तो वो जब आपकी जितनी देर तक आपकी फोर्स होती है वो हाइट पे जाती है, एंड आफ्टर दैट अगेन इट कम बैक, क्यों वापस आ जाती है। ये भी तो हो सकता था कि बॉल को आपने फेंक दिया तो वो ऊपर ही ऊपर कहीं गायब हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पेड़ों से जब भी फल गिरते हैं, फ्रूट्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, तो ऑल कम्स डाउन, वो हवा में क्यों नहीं उड़ जाते हैं। कुछ ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि अर्थ में क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होती तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। आपकी रिवर्स का वाटर, रॉक्स है, स्टोन्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट हैं, सब हवा में उड़ते रहते हैं, तो लाइफ पॉसिबल होती, हमारे प्लेनेट पे नहीं होती। ठीक है, एयर वाटर एनिमल्स एवरीथिंग विल फ्लाई इनटू द स्पेस, अगर क्या नहीं होता, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होती। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, इट पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड, इट पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड, जो भी चीजें हैं उसको ग्राउंड की ओर क्या करती है, पुल करती है, पुश नहीं कर रही है, पुल करती है, तभी तो हम लोग नीचे आ जाते हैं, उड़ते नहीं हवा में। इज इट क्लियर। तो अब हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, इनविजुअल सुपर ग्लू है, मतलब ये हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, वी आर अनेबल टू सी इट बट इट इज ऑलवेज देयर। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स से बेटा हमको एक शॉर्ट समरी क्या समझ में आई कि देयर इज सम फोर्स इन आवर प्लेनेट अर्थ विच पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द ग्राउंड, कि एक ऐसी फोर्स है हमारी अर्थ में जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा या फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोला, जो सारी चीजों को ग्राउंड की तरफ क्या कर रही है, पुल कर रही है, अपनी ओर क्या कर रही है, खींच रही है। तो ये आपकी हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स। इज इट क्लियर, ये आपकी हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद हमने डिस्कस किया है, इट इज गिवन इन योर बुक मैग्नेटिक फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद आपकी बुक में दिया मैग्नेटिक फोर्स। देखो मैग्नेट क्या है, एक मेटल है। ठीक है, सो आयरन से बना है ये। तो मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है, जो आयरन के पार्टिकल्स होंगे वो उसमें जाके स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे एकदम। ठीक है, सो दैट फोर्स इज नोन एज ए मैग्नेटिक फोर्स। देखो आप इस पिक्चर में डायग्राम में देखो, ये जो यू शेप का है, ये व्हाट इज दिस इज अ मैग्नेट, व्हाट इज दिस इज अ मैग्नेट, और ये छोटे छोटे नेल्स हैं, किल्स हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है, आयरन, जो भी ऑब्जेक्ट किससे बना होगा, आयरन से बना होगा, वो उसको अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर खींच लेती है। ठीक है, सो इट इज आल्सो शोन इन द फिगर में भी देख लो, ये यू शेप जो बना है बेटा, दिस इज अ मैग्नेट, और स्मॉल स्मॉल नेल्स आर हियर, एंड व्हाट हैपन, जब ये मैग्नेट के कांटेक्ट में आएंगी तो ये मैग्नेट क्या है, इन सबको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो फोर्स हुई बेटा, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इस फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। इज इट क्लियर। ठीक है, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में शॉर्टकट में आप समझ सकते हो, शॉर्टकट में लिख सकते हो, द फोर्स applied by magnet, the force applied by magnet on an iron object। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया,
is called it magnetic force. सो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? ये एनीथिंग विच इज मेड ऑफ ए आयरन, कोई भी चीज बेटा जो कि आयरन से बनी होगी उसको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? द फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेट ऑन एन आयरन ऑब्जेक्ट। और बाकी बहुत से ऑब्जेक्ट दूसरे मेटल्स भी हैं, लेकिन आयरन की हम बात कर रहे हैं। ये मैग्नेट आयरन को ही अट्रैक्ट करता है, बाकी को नहीं। आज सिल्वर रख दो उसके सामने, गोल्ड रख दो, वो सब नहीं उसमें जाके चिपकेंगे। ओनली द ऑब्जेक्ट विच आर मेड अप ऑफ ए आयरन दे आर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। सो सच अ फोर्स इज नोन एज ए मैग्नेटिक फोर्स। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके इसमें दिया है बुक में कि अगर जैसे आप लोग फसलों की कटिंग करते हो तो बहुत सा भूसा हस्क जो तैयार होता है, या तो आप लोग सूखी घास भी बोल सकते हो। मान लो सूखी घास के बहुत बड़ा ढेर है, गलती से आपकी उसमें कीक हो गई, एंड अब आप उसमें सर्च करना स्टार्ट करोगे तो इट विल टेक टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा। आपकी की कैसी है? आयरन मेटल की बनी हुई है, तो आप मैग्नेट से बहुत जल्दी उसे खोज सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द रीजन मैग्नेटिक फोर्स ये होती है। देखो मैग्नेट से भी जो बहुत सी फैक्ट्रीज ये सब होती हैं, ठीक है, जहाँ फैक्ट्रीज मतलब होती हैं जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स आर प्रोड्यूस, अलग अलग तरह की चीजें क्या होती हैं? प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो फैक्ट्रीज में बहुत बड़े मैग्नेट्स भी लगे रहते हैं, ऐसी मशीन्स जिनको, और ऐसे मशीन के पार्ट्स जिनकी मूवमेंट करानी है, तो मैग्नेटिक फोर्स को भी वहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स को भी वहाँ यूज किया जाता है। तो ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बेटा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शनल फोर्स। देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है? इट ऑलवेज वर्क अगेंस्ट द मोशन, ठीक है। और यू कैन से फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है मतलब उसकी मूवमेंट हो रही है, तो उसके ऑपोजिट जो फोर्स लगती है उसको स्टॉप करने के लिए, वही आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। मान लो कोई भी चीज की मूवमेंट हो रही है, कोई चीज मूव कर रही है, तो वो फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से एग्जाम्पल से बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर इन अ ग्राउंड एंड यू हिट द बॉल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल एंड यू हिट द बॉल। आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि बॉल जाती रहती है और फिर एक समय आएगा बॉल किस में आ जाएगी? रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। तो हम सोचते हैं कि मैंने जो मारा शॉट बॉल पे, वो मैंने क्या अप्लाई की? फोर्स अप्लाई की। तो जब मेरी फोर्स कम हो गई तब वो बॉल रुक गई, ठीक है। आपको ऐसा लगता है या तो आपने हैंड से बॉल को थ्रो किया, बॉल बहुत दूर तक गई, और उसके बाद उसके बाद आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस बॉल किस पोजीशन में आ गई? रेस्ट पोजीशन में आ गई। तो हम ये बिलीव करते हैं कि बॉल इसलिए रुक गई क्योंकि वहां पे हमारी फोर्स क्या है? खत्म हो गई। हमारी फोर्स खत्म हो गई, जितनी ताकत से हमने फेंका था बॉल को, जब हमारी फोर्स खत्म हो गई तो बॉल रुक गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बेटा मोशन में होता है तो उसके अपोज में जो फोर्स लग जाती है वो होती है फ्रिक्शनल फोर्स। जब आपकी फोर्स बहुत ज्यादा होती है तो बॉल मूव करती जा रही है, और जहां आपकी फ्रिक्शन, आपके जो फोर्स आपने हैंड से बॉल फेंकी, जहां से आपकी फोर्स क्या हो जाएगी? लेस होने लगेगी, तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होने लगेगी? मोर होने लगेगी।
एंड दैट इज द रीजन वंस अपॉन ए टाइम विल कम कि आपकी जो फोर्स है वो बिल्कुल लेस हो गई और बॉल रेस्ट में हो गई, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे ज्यादा हो गई बॉल पे। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसको उसके अपोज में, जैसे ये मूव कर रहा है तो इसके अपोज में इसको स्टॉप करने के लिए एक फोर्स सरसंदम इस पे अप्लाई होती है, उसी को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे फुटबॉल का एग्जांपल दिया, ए प्लेयर हिट द फुटबॉल, आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व इट कवर सम डिस्टेंस एंड इट कम इन द रेस्ट पोजीशन। तो अपने से रेस्ट पोजीशन में नहीं आ गया बेटा, जैसे आपने उसको हिट किया, उस पर फोर्स लगी, वो मूव करने लगा मोशन में। ठीक है, तो उसी समय एट द सेम टाइम, क्योंकि फ्रिक्शनल के फोर्स क्या होती है, मोशन के अपोज में लग जाती है। जैसे आपने हिट किया तो ये इसको रोकने लगी, लेकिन आपकी फोर्स ज्यादा थी तो वो ज्यादा आगे बढ़ता गया, डिस्टेंस कवर करता गया। जहां पे आपकी फोर्स लेस हो गई और फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो गई तो वो रेस्ट पोजीशन पे आ गया। यही होती है फ्रिक्शनल फोर्स। इज इट क्लियर? द फोर्स विच फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन क्या है? वो फोर्स है दैट अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट हो रही है तो उसको रोकने के लिए उसके अपोज में, ऑपोजिट से जो फोर्स लगती है उसी को फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। आई होप आपको, दैट इज द रीजन बेटा, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हम लोग वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो हम गिर जाएंगे। जब हम वॉक करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे शूज और जो आपका लैंड है उसके बीच में क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स ही होती है, जो आपको वॉक करने में हेल्प करती है, रन करने में हेल्प करती है। जब आप कार ड्राइव कर रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स किस में लग जाती है, क्योंकि आपके कार के जो व्हील्स होते हैं वो तो मोशन में आ जाते हैं, तेज चल रहे हैं, और फिर जब वो रेस्ट पोजीशन में आते हैं तो उस समय क्या होता है कि रोड और टायर्स के बीच में, मतलब रोड पे मूव कर रही है कार तो मोशन में है, तो उसको रोकने के लिए एक फोर्स लग जाती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स करते हैं। ठीक है, तो आप तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स किसके बीच में लगी, कार के, अगर हम कार और रोड की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स किस में लगेगी, कार के पार्ट्स में, किस पार्ट्स में लगेगी, टायर्स में, क्योंकि टायर और रोड आपस में टच में है, कार व्हील पे चलती है। हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ द कार। यहां फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगी, रोड पे और व्हील्स ऑफ द कार। इज इट क्लियर? तो यही है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स, इसको समझना बहुत आसान है, इट्स नॉट ए। और देखो अब फ्रिक्शन की जब बात करते हैं अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहां ज्यादा होती है और कहां पे लेस होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है बेटा आपकी, फ्रिक्शन फोर्स जो है ये मोर कहां पे होगी, इट इज मोर ऑन रफ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होती है, और स्मूथ सरफेस हो, इफ द सरफेस इज स्मूथ सरफेस, लेस फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो रफ सरफेस जो होता है बेटा, ठीक है, सो फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करती है, द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ द सरफेस। स्मूथ सरफेस पे लेस फ्रिक्शन फोर्स होती है और जो रफ सरफेस होता है उस पर ज्यादा होती है। देखो आप लोग ने सुना होगा, देखा भी होगा, जो मैन मेड बहुत सी मशीनें होती हैं, जैसे तुम लोग स्टूडेंट हो तो सबसे सिंपल एग्जांपल यूज करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट तुम लोग सबसे ज्यादा क्या चलाते हो, साइकिल चलाते हो। ठीक है, आप लोग को याद है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को लेस करने के लिए, देखो तुम्हारी साइकिल दोनों व्हील पे एक चेन होती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, एक चेन होती है। जब ग्रीस नहीं होता है तो साइकिल स्पीड पे नहीं चलती है,
क्योंकि रफ हो जाता है, ग्रीस नहीं है, स्मूथनेस नहीं है, तो वहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है। अगर फिर हम चेन पे ग्रीस लगा दें प्रॉपर साइकिल के, तो आप बहुत तेज साइकिल चला सकते हो। तो रफ सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होती है और स्मूथ सरफेस पे लेस होती है। तो जैसे आपने, आपकी चेन है, किसकी, साइकिल की चेन है, अगर उसमें आप ग्रीस लगा देते हो तो आपके साइकिल की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे मैं सिंपल वो एग्जांपल दूंगा जो आपके लेवल के होंगे, क्योंकि आप बच्चे हो, अपने लेवल से आप बेटर समझोगे। जैसे आप लोग गेम्स में कैरम खेलते होगे, ठीक है, कभी कैरम ऐसे खेल के देखो, गोटियां स्लिप ही नहीं करती हैं, क्यों, रफ सरफेस होता है, स्लिप नहीं करती हैं, मजा नहीं आता है खेलने का। तो हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को लेस करने के क्या करते हैं, पाउडर डालते हैं कैरम पे, पाउडर डालते हैं, और उसके बाद व्हेन वी स्टार्ट प्लेइंग, बहुत तेज तेज स्लिप करती हैं, जो गोटियां होती हैं बहुत तेज स्लिप करती हैं। तो रफ सरफेस जहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, उसको लेस करने के लिए सरफेस को स्मूथ करोगे, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल कैरम का दिया, आप खेल रहे हो कैरम, आप नहीं अच्छे से खेल पा रहे हो, तो आप, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, इसलिए आप प्ले नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जब आप कैरम के बोर्ड पे बहुत सा पाउडर लगा देते हो, उसके बाद बहुत तेज तेज गोटियां स्लिप करती हैं, इसका मतलब हमने पाउडर डाल के क्या कर दिया, हमने पाउडर डाल के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कर दिया, लेस कर दिया। जैसे आप लोग के पापा लोग बाइक चलाते होंगे, बाइक की जो चेन है उसमें भी ग्रीस लगाई जाती है, ठीक है, इंजन ऑयल भी डाला जाता है, जहां इंजन ऑयल भी डलता है ना, क्यों डलता है, जिससे कि उससे फ्रिक्शन लेस हो सके और हाई स्पीड मिल सके, ठीक है, फ्रिक्शन लेस हो सके और हाई स्पीड। आप लोग जितनी भी मैन मेड मशीन्स देखते हो, मशीन्स में या तो कभी अपनी मम्मी को आपने कपड़े सिलने वाली मशीन के संग काम करते देखा है, अगर मशीन प्रॉपर वर्क नहीं करती है तो सबसे पहले आपकी मम्मी क्या करती है, मशीन के पार्ट्स में ऑयल्स डालती है, जिससे कि उसकी वर्किंग क्या हो जाती है, बहुत स्मूथ हो जाती है। तो हम लोग फ्रिक्शन को लेस कैसे कर सकते हैं, जैसे कैरम में पाउडर लगा के कर लिया। मशीन्स के वर्किंग को स्मूथ कैसे कर सकते हैं, ऑयल या ग्रीस करके। आ रही है बात समझ में। तो बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो है, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज द मोशन, ठीक है, जो भी चीज जिसकी मूवमेंट हो रही है तो वो रेस्ट में आती है। इसका रीजन क्या है, वो अपने से नहीं आ रही है, उसका रीजन क्या है कि जब भी कोई चीज मोशन में होती है तो उसके अपोज में एक फोर्स अपने आप ही वर्क करने लगती है उसको रोकने के लिए, और उसी को फ्रिक्शनल फोर्स बोला गया है। और फ्रिक्शनल फोर्स स्मूथ सरफेस पे लेस होती है और रफ सरफेस पे बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आपने कभी देखा है मार्बल्स लगे हों जो बहुत स्मूथ हों, अगर वहां तेजी से रन करो और वाटर गिरा, आप तुरंत स्लिप कर जाते हो, गिर जाते हो। रेनी सीजन में बच्चे बहुत गिरते हैं, क्योंकि वाटर जब सरफेस पे आ जाता है फ्लोर पे, तो वो बिल्कुल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत लेस हो जाती है, वो बहुत स्मूथ हो जाता है, इसलिए हम स्लिप कर जाते हैं, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अलग अलग ढंग से लेस भी किया जा सकता है। जैसे कैरम में पाउडर डाला, मशीन्स की वर्किंग को बेटर करने के लिए उसमें ऑयल डाल दिया या ग्रीस लगा दी, तो इन दिस मैनर आल्सो आप कर सकते हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को लेस कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने बेटा कौन कौन फोर्सेस डिस्कस की आज के वीडियो में। मैंने आप लोग को मस्कुलर फोर्स के बारे में बता दिया पूरा, उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस की, देन मैग्नेटिक फोर्स डिस्कस की, और फिर लास्ट में फ्रिक्शनल फोर्स डिस्कस की। उसके बाद देखो वर्क है, अब नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं इसमें वर्क, व्हाट इज अ वर्क। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करते हैं बेटा इसमें वर्क। सो वर्क क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो बेटा, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, या तो उसको पुश कर रहे हो या तो अपनी ओर खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, कि फोर्स दो मेथड से अप्लाई होती है, वेदर यू पुश और वेदर यू पुल, ठीक है, पुश और पुल होता है, ठीक है। जैसे आपकी मसल्स वर्क करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जैसे आपकी मसल्स वर्क करती हैं। तो अब सिंपल आप इसको समझो, अगर आप अब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाने से अगर उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो गई, तो इसका मतलब
क्या है, वर्क हुआ। ठीक है, जैसे मैंने ये डस्टर रखा यहाँ, ये मेरे हाथ पे डस्टर है, ठीक है, ये मेरा हैंड। अब मैंने अपनी इस फिंगर से फोर्स लगाई, अब ये देखो मूव करके आगे जाने लगा। इसका मतलब अगर कोई तुमसे पूछेगा वर्क हुआ तो आंसर होगा यस। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो जाती है, दैट इज नोन एज वर्क। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।